Okay guys, let's start करें. Hello, am I audible? Please respond. Am I? Yes, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. Please respond. Yes. Will one say something? Hello, am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Hello. सर आपका वॉइस आ रहा है, स्टूडेंट बोल रहे हैं. हेलो. Okay. I hope he has that set of problems, right? Magnetism and matter. The term magnetism and matter. I hope everyone is having that right now. भाई सबके पास है, तो अपन डायरेक्ट स्टार्ट करें. चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कि if a magnet is suspended at an angle 30 degree to the हमारे PDF आपके पास नहीं है? अच्छा मैं शेयर कर देता हूँ सर ग्रुप में, रुकिए. ओके, जब तक सर शेयर कर दे तब तक पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं. If a magnet is suspended at an angle 30 degree to the magnetic meridian, the dip needle makes an angle of 45 degree with the horizontal, the real dip pitch. ठीक है, रियल डिप पूछा गया है. तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है. ये जो मेरा प्लेन, लेट अस से दिस वर्टिकल प्लेन, हालांकि एक ही बोर्ड पे मैं दो वर्टिकल दिखा सकता हूँ, बट ट्राई टू इमेजिन. Okay, fine. So let us say this is a real magnetic meridian, और ये जो है हमारा वो प्लेन है, वर्टिकल प्लेन ऑफ मैग्नेट. जिस प्लेन में आपने मैग्नेट को रखा है ये वो वाला प्लेन है. ठीक है, तो लेट अस से इसमें जो हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो रियल होगा BH, और ये बताया गया है कि ये एंगल 30 डिग्री है. करेक्ट ना? बोला गया है कि आपका जो मैग्नेट है वो रियल मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाए हुए है. सो कैन यू गाइस विजुअलाइज दिस थिंग? If not, then let us try to understand from this. So let us say, can you see this vertical plane? I mean the vertical plane made by the red and the blue pen. The vertical plane, the red and the blue, correct? This is one vertical plane. And if I am adding a black marker, so let us, the black and the blue is also making a vertical plane. Can you see that? And the angle between the black and the marker is 30 degree. That is given in the question. Fine. और लेट अस से जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो दोनों ही मेरिडियन में सेम होगा, दोनों ही वर्टिकल प्लेन में सेम होगा. सो BH का जो कंपोनेंट इस प्लेन में आएगा वो कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कंपोनेंट लेना आप सबको आता है. BH को जस्ट 30 डिग्री रोटेट कराना है, सो इट विल बिकम BH cos 30 डिग्री एंड BV विल रिमेन द सेम. और बोला गया है कि इस प्लेन में जो हमारा एंगल ऑफ डिप है वो 45 डिग्री है. या दैट एंगल इज 45 डिग्री. तो डिप लेट अस से डेल्टा या डेल्टा प्राइम, इस प्लेन बात कर रहा हूं.
दैट इज इक्वल टू BV प्राइम बाई BH प्राइम। BV प्राइम मतलब इस प्लेन में वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, BH प्राइम इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हर एक वर्टिकल प्लेन में सेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो आई विल सिंपली राइट इट BV by BH prime. I can take the component as BH cos 30 degree and it is given as 45 degree. I mean tan of delta prime की मैं बात कर रहा हूँ, so it is tan 45 degree which is 1, right? Now इस प्लेन की अगर आप बात करें तो इस प्लेन में tan डेल्टा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है BV by BH वर्टिकल कंपोनेंट by हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। So actually you need to calculate BV by BH. Therefore I will say BV by BH is equal to 1 into cos 30 degree. Now BV by BH is tan of real angle of dip, tan delta cos 30 root 3 by 2 delta tan inverse root 3 by 2. Are we good? समझ में आया क्या? हाँ जी समझ में आया? Yes, sir. हेलो चलिए आगे चले। So this is option. Next, the net magnetic moment of the two ideal magnet each having magnetic moment m naught inclined at an angle 60 degree with each other. अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से या करना है? Anyone wants to discuss this question? I think it is a very basic question, so you guys should be able to do it. If not, then please tell me. It is just like adding two vectors. Yes, sir. Guys, be quick. So can we skip this? Okay. So coming to question number 3. The torque of 10 raised to the power 5 Newton meter is required to hold a magnet at 90 degree with horizontal component H of the Earth's magnetic field. The torque required to hold it at 30 degree will be. तो सिंपल सी बात है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है? M क्रॉस B है ना? टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? M क्रॉस B, MB sin थीटा। sin 90 के लिए टॉर्क दिया हुआ है, sin 30 के लिए टॉर्क निकालना है, बाद बाकी सब कुछ सेम है, वही मैग्नेट है, वही अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, tau1 tau2 इक्वल टू sin 90 by sin सर थीटा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद 3, 2 आप लोगों ने बोला ना हो जाएगा। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? सर अभी ज्वाइन किया था, देखते हैं। हो जाएगा। अच्छा देखिए, हाँ सर हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो 3 का वही है, tau1 by tau2 इक्वल टू sin 90 by sin 30। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, यानी कि m भी sin थीटा, m और b सेम रहेगा, बस थीटा चेंज हो रहा है। सो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, लगाइए, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सब्सटेंस हिस्टेरेसिस BH कर्व हमें दिया हुआ है, बोल रहा है कि फॉर मेकिंग टेम्पररी मैग्नेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट। तो टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या चीज जरूरत है? टेम्पररी मैग्नेट कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या चीज जरूरी है? एनीवन? हाँ जी तो बताएगा? नो वन? ओके। तो टेम्पररी मैग्नेट बनाने के लिए जरूरी है कि जब हम लोग करंट को जीरो कर दें तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि उसका रिटेंटिविटी, और दूसरा उसका कोई होना चाहिए। कहने का मतलब आपका ग्राफ जितना पतला हो सके उतना बेटर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। जस्ट मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ। डोंट एक्सपेक्ट मी टू मेक अ वेरी व्हाटएवर, ठीक है? तो मैं ये कहने की कर रहा हूं कि ये आपका रिटेंटिविटी और ये आपका कोएसिविटी, ये जितना छोटा होगा, ये इसका मतलब क्या है कि मेरा करंट जीरो हो गया, अभी कितना मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ, और ये कितना नेगेटिव मैग्नेट, उल्टा
करंट अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज जीरो होगा। तो कहने का मतलब मुझे दोनों चीज एज लो एज पॉसिबल चाहिए। हमें बहुत कम रिटेंटिविटी चाहिए, हमें बहुत कम कोरसिविटी चाहिए। कहने का मतलब हमारा जो कर्व है वो जितना पतला हो सके उतना पतला होना चाहिए। सबसे पतला कर्व कहाँ नजर आ रहा है? नंबर 4 है ना? यस सर। सर नंबर इसमें 4 परमेबिलिटी का क्या रिलेशन है? कहाँ पे आपको परमेबिलिटी चाहिए? जैसे बी और कि एच? इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पररी मैग्नेट का परमेबिलिटी हाई होता है, तो उसका क्या रीजन है? देखिए यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, ये जो कर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वो हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपका जो परमिएबिलिटी रहेगा या काई का जो वैल्यू ससेप्टिबिलिटी रहेगा वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। ठीक है, आप जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए, आप जो नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट बनाएंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है किस सब्सटेंस से बनाएंगे? फेरोमैग्नेट से बनाएंगे, है ना? ओके सर। चलिए, the magnetic needle has a magnetic moment that much, moment of inertia that much, performs incomplete oscillation at much time period दिया हुआ है। What is the magnitude of magnetic field? Time period is equal to 2 pi into square root of I mb, याद है सबको? टाइम पीरियड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I by mb, याद है सबको? आया ना? यस सर। तो बस लगा दीजिए, काम खत्म है वहां पे, और क्या करते? टी पता है, आई पता है, बी एम पता है, सही है ना? टी पता है, आई पता है, एम पता है, बी निकालना है। जस्ट वैल्यूज प्लग इन कीजिए, आगे चलते हैं। The force between two short bar magnet with magnetic moment m1 m2 whose centers are r meter apart is 8 newton. When their axes are in the same line, if their separation is increased to 2r, the force between them is reduced. The length of the magnet is much smaller than r. अच्छा, ये मतलब एक्सियल डाइपोल है, कहने का मतलब है। Let us say m1 m2. Can someone tell me the force here? हाँ जी, फोर्स का इक्वेशन क्या आएगा? एनीवन? गाइस, हेलो? हाँ जी, किसी को याद है? सर थोड़ा बोल दीजिए। कोई नहीं। अच्छा, आ, कम से कम इतना तो याद होगा कि किसके आर के किस पावर के प्रोपोर्शनल है। जस्ट टेल मी दैट ओनली। क्यूब के प्रोपोर्शनल। हाँ हाँ, क्यूब के, आर क्यूब के केपी बाय। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो बेसिकली यू वांट टू से कि केपी बाय आर क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दें। हाँ जी, ये फॉर्मूला किसी ने पढ़ा है? हाँ जी, ये फॉर्मूला किसी ने पढ़ा है? हाँ है ना? बताइए, यस और नो, दिस वन गाइस। कोई नहीं, चैट में
हेलो, ये फॉर्मूला किसी को याद है? Yes, sir. ये एक्स, अच्छा याद है तो फिर बोला क्यों नहीं? हाँ जी, याद है तो फिर बोला, आपने बताया क्यों नहीं? ओके, एनीवे, कोई बात नहीं। कहने का मतलब है कि अगर दो मैग्नेटिक डाइपोल सेम लाइन ऑफ एक्सिस पे है, उनके बीच का जो फोर्स हो जाएगा वो ये होगा। इज दैट फाइन? तो यही पूछना है। अच्छा, दूसरा एक और चीज है, तो जिसने आर क्यूब कहा था उसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई डायमेंशनली ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं नीचे में आर क्यूब रखूंगा तो क्या डायमेंशनली करेक्ट होगा? है ना? अच्छा, एक चीज और, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं है बट फिर भी, अगर मान लेते हैं इक्वेटोरियल सेटअप रहेगा, M1 ये, M2 ये, तो फार्मूला क्या बन जाएगा गाइस? ये किसी को याद है? ये किसी को याद है? आया ना? कुछ तो बताइए। कोई कुछ चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे 6 की जगह 3 कर देना है। करेक्ट? वहां पे भी आपका होगा एक्सियल और इक्वेटोरियल में 2 टाइम का डिफरेंस रहता है। एक में 2 kp बाय आर क्यूब होता है, एक में kp माइनस kp, जो भी बोलिए, kp बाय आर क्यूब हो जाता है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इज दैट ओके? समझ रहे हैं Yes, ना क्या sir. बोल रहा हूँ? ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि 8 न्यूटन है जब आर है, तो ये तो सिंपल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 है ना? तो F1 बाय F2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 रेज टू द पावर 4। करेक्ट? समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? Yes, sir. आगे चले? ओके, magnetic question number 7, the magnetic moment of a magnet is that much. It is suspended magnetic field of intensity that much. The torque acting upon it one deflect. अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग पढ़ रहे हैं। इट इज सिंपल, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b है। देखा आपने क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज, आपको मैं m दे रहा हूँ 1, आपको मैं b दे रहा हूँ इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4 इनफैक्ट, और थीटा दे रहा हूँ 30 डिग्री। तो m b साइन थीटा लगाइए, काम खत्म है। आगे चलते हैं। A bar magnet of length 10 centimeter is having the pole strength of 10 to the power minus 3 Weber is kept in a magnetic field having induction that much. It makes angle 30 degree with the direction of the magnetic induction. Find the value of the torque. Again same चीज है, 10 सेंटीमीटर लेंथ का मैग्नेट है और 10 के पावर माइनस 3 वेबर का इसका पोल स्ट्रेंथ है। तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। आया ना? हाँ जी, समझना है क्या बोल रहा हूँ? अगर आप एंड करेक्शन नहीं लेते हैं तो, अगर एंड करेक्शन लेते हैं तो 0.84 टाइम्स होता है, 84% होता है। खैर मुझे लगता नहीं है कि उसकी जरूरत है, कहीं पे बोला भी नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर कि m इज इक्वल टू n इनटू d। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। है ना? ये तो सबको समझ में आ रहा है ना? प्लीज रिस्पॉन्ड यार, ऐसे फिर मजा नहीं आता है। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहां से अपन m निकाल लेंगे, b दिया हुआ है, एंगल थीटा दिया हुआ है, टॉर्क निकल जाएगा। सो नॉट एन इश्यू, राइट? आगे चलते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। द एंगल बिटवीन द फील्ड डायरेक्शंस इज 60 डिग्री and one of the field has a magnitude of that much. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of other field? तो नॉर्मल सा बात है, मैग्नेटिक डाइपोल इक्विलिब्रियम में किस तरफ जाएगा? जिधर रिजल्टेंट फील्ड होगा। है ना? एक मैग्नेट अगर दो फील्ड के इन्फ्लुएंस में, मैं जस्ट बता रहा हूँ, 60 डिग्री है, तो लेट अस से ये हमारा B1 हो गया, ये हमारा B2 हो गया, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। B1 की वैल्यू, वन फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 टेस्ला है, और आप मैग्नेटिक निडल है वो यहां से 15 डिग्री के एंगल पे आ रहा है। So this angle is 15 degree.
तो बेसिकली ये जो हमारा ये है वो क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है द डायरेक्शन ऑफ B1 प्लस B2, इजंट दैट? यही बता रहा है ना? क्लियर है? क्वेश्चन से क्लियर है? ये इतनी बातें क्लियर है आपको क्वेश्चन से गाइस? इज दैट ओके? Yes, हाँ sir. जी, कुछ तो बताइए। हाँ, तो अगर ये क्लियर है तो फिर हमें क्या पता करना है? B2 का मैग्नीट्यूड पता करना है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये tan 15 वाला फॉर्मूला लगा देंगे जैसे वेक्टर में हम लोग करते हैं। tan of 15 degree will be equal to B2 sin 60 degree by B1 plus B2 cos 60 degree. Can we do that? जब नॉर्मल जैसे वेक्टर में आपने पढ़ा था, ये यहाँ का कुछ है ही नहीं, ये वेक्टर है, दो वेक्टर है पी क्यू, उसके बीच उसके रिजल्टेंट का जो एंगल है वो उनके साथ 15 डिग्री है, ठीक है, और उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो ये जो tan 15 आएगा या tan अल्फा जो भी कहिए, उसका जो फॉर्मूला होता है यही होता है ना, P इंटू P प्लस क्यू क्रॉस थीटा। पढ़ा हुआ है ना वेक्टर में ये फॉर्मूला आपने? Yes, sir. जी, तो बस कुछ नहीं करना अभी। B2 अरे tan 15 निकालना सबको है ना? आई होप नहीं आता तो वो मैं बता सकता हूँ। tan 15 को क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अच्छा, tan A माइनस बी सबको याद है? tan A माइनस बी सबको याद है? नहीं सर, हाँ जी, tan क्या AB बात कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय tan tan A minus B, हाँ, यही है 2 tan AB। tan A माइनस tan B। ओह, अरे 2 tan का फॉर्मूला नहीं पूछ रहे थे, tan A माइनस tan A माइनस B का फॉर्मूला, tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A tan B। Shall I write that? yes sir। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। ठीक है, अगर ये प्लस रहता तो ये साइंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस। खैर, यहाँ पे जो है उसके हिसाब से क्लियर है। तो यहाँ से अपन tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, बाद बाकी तो है ही। चलिए आगे चले। Two short bar magnets of magnetic dipole moment are placed at the corner of a square and the magnetic induction at point P. तो ठीक है ना, एक के लिए ये एक्सियल पोजीशन पे है, दूसरे के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, आपका जो पॉइंट P है। कैन यू सी दैट? अच्छा, नॉर्थ पोल साउथ पोल दिया है क्या? हाँ, नजर को आ रहा थोड़ा बहुत। चलिए ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया ना भाई लोग? हाँ जी, क्या बोलते हैं यस सर। Yes, sir. गाइस? रिस्पॉन्ड। सो नॉर्थ पोल इधर है, तो ये डाइपोल मोमेंट m इधर हो गया, इसके रेस्पेक्ट में P पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, और दूसरे का नॉर्थ पोल इधर है m, तो ये एक्सियल पोजीशन पे हो गया, दोनों का m सेम है। तो इसकी वजह से जैसे kp बाय r क्यूब होता है उसी को m में कन्वर्ट कर लीजिए ना, स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस लेटर से a ही है या r ही है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा? ऑपोजिट बनता है इक्विटल की वजह से, तो ये इधर बन जाएगा माइनस k के जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई, p के जगह पे m बाई r क्यूब। इज दैट ओके गाइस? माइनस लगाने की फिर कोई जरूरत, मैंने डायरेक्शन एडजस्ट कर लिया है। अगर m का डायरेक्शन ये है तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा होगा। इज दैट ओके? सबने पढ़ा हुआ है, डाइपोल में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी पढ़ा होगा, आया ना? यस सर। अच्छा, चलिए इसकी वजह से, तो इसकी वजह से जिधर डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट का होता है उधर ही आपके मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। कहने का मतलब इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, कहने का मतलब है k यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, p के जगह m लिखिए डिवाइडेड बाई r क्यूब, जस्ट यहाँ पे 2 डाल दीजिए। तो बेसिकली 2 माइनस 1 यानी कि इट इज सिंपली म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r क्यूब, ये अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू नॉट बाई 4 बाई 10 के पावर माइनस 7 हो गया, m का वैल्यू दिया हुआ होगा और r का भी वैल्यू आई थिंक 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो जस्ट प्लग इन द नंबर्स, यू विल गेट द रिजल्ट, करेक्ट ना?
समझ में आया क्या? समझ में आया? यस Yes, sir. क्या बोलते हैं? चलिए आगे चलते हैं. Coil in the shape of an equilateral triangle of side L is suspended between the pole pieces of a permanent magnet such that V is in the plane of the coil if due to the current in the triangle tau x on it the side L of the triangle. अच्छा L आपको पूछ रहा है, ठीक है. तो देखिए ट्राइंगल और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला है कि ट्राइंगल का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है. जैसे ये हमारा ट्राइंगल का प्लेन है एंड लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. यही बोला ना आपके क्वेश्चन में. तो हमें किससे मतलब होता है? अब बेसिकली टॉर्क क्या हो जाता है? टॉर्क होता है m क्रॉस b, राइट? यानी कि एम बी साइन थीटा. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट. अच्छा m मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट तो है नहीं, ये क्या है? कॉइल है. नाउ कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? NIA, सबको याद होगा, है ना? ये होता है आपका NIA b थीटा. नाउ ये जो m का डायरेक्शन होता है, जैसे डाइपोल के केस में, परमानेंट मैग्नेट के केस में जो डाइपोल मोमेंट m होता है उसका डायरेक्शन किधर होता है? फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. बट इसमें कैसे करते हैं? जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन हम लोग दे देते हैं इसको. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऑब्वियसली परपेंडिकुलर हो जाएगा, आया ना? आया ना? Yes, sir. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है. बोले तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है. साइन थीटा साइन 90 1 हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. क्या बोलते हैं? चलिए फिर मैंने बोला कि हमारा जो एरिया वेक्टर होगा इस ट्राइंगल का वो इस ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ऐसा होगा जैसा मैंने ये मार्कर रखा हुआ है. और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें बताया गया है कि वो ट्राइंगल के प्लेन में ही है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा बी वेक्टर और एम वेक्टर का वही डायरेक्शन होता है जो कि ए वेक्टर का होता है, ठीक है? परपेंडिकुलर होगा आपस में. इज दैट फाइन? यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा. इज दैट ओके? जल्दी 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 रिस्पॉन्ड कीजिए. चलिए तो अभी नंबर ऑफ टर्न्स तो एक ही है, करंट आई दिया हुआ है, तो टॉर्क इक्वल एरिया क्या हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का? हाँ जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 3/2 a square L square. हाँ, क्या क्या क्या? फिर से बोलिए. Root 3/2 L square. ट्रू. मेरे हिसाब से 3/4 होना चाहिए भाई. हाँ, root 3/4. Sorry. क्या बताओ? ठीक है. अच्छा अभी हमसे क्या पूछा है? एल पूछा है, तो एल कितना हो जाएगा या एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 tau बाई आई बी, इनफैक्ट आई रूट 3b. 4 tau आई रूट 3b. अब इसका स्क्वायर ले लीजिए. तो 2 किस फॉर्मेट में चाहिए अपने को? रूट 3 को तो अंदर डालना पड़ जाएगा. रूट 3 को अंदर डाल दीजिए. तो tau बाई आई बी रूट 3 और इसके ऊपर में पावर हाफ ले लीजिए. ठीक है, चलेगा? हाँ जी, क्या बोलते हैं? इज दैट फाइन? हाँ जी. Yes, sir. So that was question number I think 11. Fine. चलिए next. Two identical short bar magnets each having magnetic moment of 10 ampere meter square are arranged such that their axial lengths are perpendicular to each other and their centers be along the same straight line in the horizontal plane. If the distance between their centers is 0.2 meter, the resultant magnetic induction at a point midway between them is. हाँ तो भाई ठीक ही है, इसमें क्या है?
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि हमने कुछ देर पहले किया था। तो लेटर से एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में ऐसे दिखा और दूसरा जो होगा ऐसे होगा। इज दैट फाइन? इसके बीच का सेपरेशन आर वगैरह कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बताओ क्या होगा? यही ना? सही है? समझ आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ा आपने? Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ा आपने? Two identical short bar magnets, each having magnetic dipole moment something m, are arranged such that their axial lines are perpendicular to each other. तो इसका axial line ये हो गया, इसका axial line ये हो गया, तो they are perpendicular to each other. And their centers be along the same straight line. तो दोनों का center same straight line के along है, horizontal plane में है. If the distance between their center is 0.2 meter, so this distance is 0.2 meter. Fine. The resultant magnetic induction at a point midway between them. तो ठीक है भाई, क्या करना है? तो लेट अस से टोटल डिस्टेंस को अपन 2r कह देते हैं, तो r हो गया, ये भी r हो गया। ये पॉइंट इस डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे आया ना, कह सकते हैं ऐसा? जो हमारा पॉइंट है ये वाला, इस डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, कैसे? तो Yes, sir. इसके वजह से मैग्नेटिक हो जाएगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस पी बाई आर क्यूब, के मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई, पी मतलब एम बाय आर क्यूब। माइनस को हमने पहले ही एकोमोडेट कर लिया है डायरेक्शन को उल्टा करके। फाइन, इसके लिए बात करते हैं। ये किधर है? एक्सियल पोजीशन पे है। कह सकते हैं ना ऐसा? हमारा जो पी पॉइंट है वो इस डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन पे है, आया ना? कह Yes. सकते हैं? ओके, एक्सियल पोजीशन के लिए क्या होता है? जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है उधर ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होता है। बोले तो हमारा ये इनफैक्ट 2 kp बाय आर क्यूब, सो 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई, पी के जगह पे एम बाय आर क्यूब। ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 2 स्क्वायर बोले तो 4 प्लस 1 5, यानी कि म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब तो कॉमन ही है, और रूट 5 आपका ऐसे आ जाएगा। सो दैट विल बी बी नेट। अभी बाद बाकी तो आपको थोड़ा सा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। एम और आर क्यूब का वैल्यू वगैरह, एम आर म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सब वैल्यूज आपको डाल करके देखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। The dip needle lies initially in the magnetic meridian when it shows the angle of dip theta in the plane. The dip circle is rotated through an angle x in the horizontal plane and then shows an angle of dip theta prime. ये सेम क्वेश्चन हमने किया था ना अभी? हाँ जी, सेम क्वेश्चन किया था, याद है? क्वेश्चन नंबर 1 ही था। क्वेश्चन नंबर 1 हमने यही किया था। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा आप लोगों ने? नाइस। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा? सेम क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 1। बस उसमें यही था कि थीटा प्राइम जो है वो हमें दिया हुआ था 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ रोटेशन है जिसको एक्स कह रहा है वो हमें दिया हुआ था 30 डिग्री। करेक्ट ना? अगर आप लोगों को याद हो तो एक्स का वैल्यू वहां पे था 30 डिग्री, और थीटा प्राइम जिसको यहाँ पे कह रहा है वो था 45 डिग्री। तो हमने वहां पे एंगल को न्यूमेरिकल वैल्यूज में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करना है। सो नॉट अ प्रॉब्लम। फिर से हम लोग वही बात बोलेंगे कि लेटर से ये हमारा एक्चुअल रियल मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, रियल मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये है हमारा क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ नीडल। अभी जिस मेरिडियन में हमारा नीडल है वो है, दोनों के बीच का एंगल एक्स बताया गया है। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये ले लीजिए, बी भी दोनों के लिए एक ही होगा। इसको ये रियल है तो एक्चुअल बी एच हो जाएगा, तो बी एच प्राइम एक्चुअली कितना हो जाएगा? बी एच कॉस एक्स। क्लियर है मेरे भाई? हाँ जी, क्लियर है ये चीज? ओके फाइन। इसमें हमें बताया गया है कि अपरेंट एंगल ऑफ डिप जो है वो थीटा प्राइम है। तो कहने का मतलब हो गया कि tan थीटा प्राइम इज इक्वल टू बीवी प्राइम बाय बी एच प्राइम। अच्छा, बीवी प्राइम एंड बीवी इज सेम, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही वर्टिकल प्लेन्स में सेम होता है। सो आई विल से बीवी बाय बी एच प्राइम की जगह बी एच कॉस एक्स।
is equal to tan theta prime. Now bv by bh ये इस प्लेन में रियल डिप हो जाएगा, tan theta हो जाएगा. So tan theta by cos x is equal to tan theta prime. Therefore tan theta prime by tan theta 1 by cos x. Are we good? हाँ जी, सही है. समझ में आया क्या? Yes, sir. समझ में आया? आगे चलिए. Needles N1 N2 ऐसे कुछ दिया हुआ है. N3 are made up of ferromagnetic, paramagnetic, diamagnetic substance respectively. A magnet where all goes to them. अभी नॉर्मल सा बात है, जो फेरोमैग्नेटिक है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया जाएगा, जो पैरामैग्नेटिक है वो वीकली अट्रैक्ट किया जाएगा, और जो डायामैग्नेटिक है वो वीकली रिपेल किया जाएगा. ये बात सबको पता है, ये बाय डेफिनेशन है, इसमें मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ. Yes, sir. बाय डेफिनेशन, राइट. चलिए आगे चलते हैं. Domain of a ferromagnetic substance is in the form of a cube of side length and micrometer. Fine. If it contains 8 into 10 to the power 10 atoms, and each atom has a dipole moment 9 into 10 to the power minus 24 ampere meter square, then the magnetization of the domain. Magnetization vector क्या होता है? Net dipole moment divided by volume, right ना? Net dipole moment divided by volume, correct? Magnetization vector क्या होता है? सबको पता है ना? Net dipole moment divided by volume. तो चलिए भाई, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर m, या चलिए इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नाम लिख लेते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा. मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. चलिए, तो बोला गया है कि एक डोमेन के अंदर 8 into 10 के पावर 10 एटम्स हैं, और एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट है वो 9 into 10 के पावर minus 24 है. तो ये हमारा हो गया नेट डाइपोल मोमेंट, है ना. एक डोमेन में सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पर्टिकुलर डोमेन, राइट ना. डोमेन का कॉन्सेप्ट आप सबने पढ़ा है ना. जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना, उसमें हर एक छोटा छोटा सेगमेंट बन जाता है, जिसमें कि हर एक डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिकली एक ही डायरेक्शन में अरेंज रहते हैं, एंड दैट इज नोन एज डोमेन. तो इस डोमेन, जिस पर्टिकुलर डोमेन की बात हो रही है, उसमें इतने एटम है और हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट इतना है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट उस पूरे वॉल्यूम का ये हो गया, करेक्ट, डिवाइडेड बाय द नेट वॉल्यूम. क्यूबिकल स्ट्रक्चर बताया गया है उस डोमेन का, और 1 माइक्रोमीटर उसका ये है. तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? 10 के पावर minus 6 मीटर का होल क्यूब, राइट. सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. समझ में आया ये वाला? आया ना? समझ में आया ये वाला? Yes, sir. भाई लोग समझ में आया. चलिए आगे चलते हैं. 3 identical bars ABC are made up of different magnetic materials. One can obtain the uniform magnetic field. The lines are follow. तो नॉर्मल सा बात है, जिसमें सबसे ज्यादा क्लोज आ गया है वो फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा. क्या बोल रहा है? अच्छा हाँ, जो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो गया, यानी कि A जो है आपका फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा, B में रिपेल हो गया लाइंस, वो आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा, C में क्लोज आया है बट उतना क्लोज नहीं आया है, एंड दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायामैग्नेटिक. इज दैट फाइन? चला गया ये. हाँ यस सर. हाँ जी, क्या बोलते हैं? यस सर. A फेरो, B डाया, और आपका C पारा. एनी कंफ्यूजन? नो. चलिए, ये क्या होता है? A vibration magnetometer is placed in magnetic meridian, has a small bar magnet. The magnet executes oscillations with a time period of 2 seconds in Earth's horizontal magnetic field of 24 microtesla. When a horizontal field of 18 microtesla is produced in the opposite to the Earth's field by placing a current carrying wire, the new time period of the magnet will be. So time period is inversely proportional to square root of B, right?
टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी, करेक्ट ना? हाँ जी, सही है। Yes, sir. फाइन बात। तो मैग्नेट आप चेंज कर नहीं रहे हैं, मैग्नेट आप चेंज नहीं रहे हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा। आप कर क्या रहे हैं? आप बी को चेंज कर रहे हैं। पहले जो बी था वो बस बी एच था, अर्थ का हॉराइजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में अर्थ के हॉराइजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को आप एक पर्टिकुलर मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपोज करवा रहे हैं। तो आपका यहां से एक्सप्रेशन आएगा कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ B, so T1 by T2 is equal to square root of B2 by B1. B2 is BH minus B external, और पहले सिर्फ BH था, फाइन ना? और माइनस इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बोला गया है कि अपोज करवा रहे हैं, करेक्ट ना? बोला गया क्वेश्चन में। Yes, sir. So I hope यहाँ से you can carry forward. Next. The midpoint of two small magnetic dipoles of length D is on end-on position. The separation is x. The force is directly proportional to x के पावर माइनस n, n इक्वल टू, ये तो हमने अभी अभी किया था ना, 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 गाइस। Yes, sir. एंड ऑन पोजीशन, ऐसे तो एंड ऑन हो या इक्वेटोरियल हो, ब्रॉड साइड ऑन हो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में इट इज प्रोपोर्शनल टू r के पावर -4। बस कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है, ब्रॉड साइड ऑन में 3 आता है, एंड ऑन में 6 आता है, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आगे चलिए। The magnetic field of Earth at the equator is approximately that much. The radius of the Earth is that much. The dipole moment of the the radius of the Earth is that much. The dipole moment of the Earth will be near to that much. ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है इक्वेटर का, ठीक है, और आपसे डाइपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ विल बी नियरली ऑफ द ऑर्डर ही पूछा है, तो बस इसमें आपको यही कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। तो हम लोग सेंटर पे ये मानेंगे, रेडियस दिया हुआ है, वही आप केपी बाय, सॉरी, अगर आप इसको ऐसे देखें, ऐसे 2-3 का कोई फैक्टर भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और एंगल भी छोड़ दीजिए क्योंकि सिर्फ ऑर्डर से मतलब है। ऐसे तो अगर ऑर्डरली जाया जाए तो बहुत कुछ कहना पड़ जाएगा। ठीक है, हमारा इक्वेटर लाइन ये आएगा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। तो बेसिकली इस सेंटर पे अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मानेंगे तो सेंटर से जो हमारा इक्वेटर है उसका डिस्टेंस कितना हो गया? रेडियस के बराबर हो गया, है ना? रेडियस के बराबर हो गया। तो एक डाइपोल मोमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ऐसे तो अगर थीटा को इंक्लूड करते हैं तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 वगैरह वगैरह सब कुछ आता है, kp बाय r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 वगैरह वगैरह, लेकिन बस ऑर्डर से मतलब, इसलिए हम लोग उतना डिटेल में नहीं सोचेंगे इसको। तो हम लोग सिंपली कहेंगे म्यू नॉट बाई 5 इंटू एम बाई रेडियस क्यूब, सही है? हाँ जी। बी दिया हुआ है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जानते हैं। आर दिया हुआ है, आर का क्यूब करेंगे, एम आ जाएगा, है ना? एम का ऑर्डर चाहिए अपने को, क्लियर है? हाँ जी, क्या बोल रहा है? तो इसमें उतना ज्यादा कुछ सोचने लायक है नहीं। आगे, कंपास निडल whose magnetic moment is 60, it directs towards the geographical north at any place experiencing moment of force of 1.2 that much. At the place the horizontal component of Earth's magnetic field is that much. What is the value of dip angle at that place? ठीक है, हमें कंपास का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि m पता है, is directed towards geographical north pole at any place experiencing a moment of force यानी कि टॉर्क दिया हुआ है। हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है, हमें डिप पता करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको टॉर्क दिया है, m दिया है, ठीक है, तो m क्रॉस b करके आप b निकाल सकते हैं, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 22 गाइस, कम ऑन। हमें m दिया हुआ है 60, ठीक है,
और टॉर्क दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। ये इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एट एनी प्लेस, ये भी हमें बताया गया है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है। अच्छा, अब भी ये बताया गया है कि उस जगह पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 40 है। तो नॉर्मल सा बात है, आपका जो मैग्नेटिक नीडल रहेगा जो कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली बी की तरफ पॉइंट कर रहा है ना। तो आपको बीई पता चल जाएगा, थीटा यहाँ पे आप 90 डिग्री यूज करते हुए टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी निकाल लीजिए। करेक्ट, एम क्रॉस बी निकालेंगे आपको बी चल जाएगा। अभी आपको ये भी बताया गया है कि हमारा जो क्या कहते हैं टॉर्क है वो दिया हुआ है, हमें एम दिया हुआ है और हमें ये भी दिया हुआ है 40 माइक्रो वटेवर वाट वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो फिर बी आपको बी पता है, दोनों का रिलेशन तो आपको पता ही होगा, बी एच और बी का रिलेशन सबको पता है, हाँ या ना। यस सर। बी एच और बी का रिलेशन एंगल ऑफ डिप के साथ सबको पता है, तो वहां से आपको बी आ जाएगा, बी एच और बी का रिलेशन निकालिए, कहानी खत्म। आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन 17 के लिए आपने क्या कहा था? अरे भैया कहाँ कहाँ दोहराते रहते हो यार। अच्छा देखने दो। अच्छा, when a piece of ferromagnetic lens is in a uniform magnetic field, the flux density inside it is 4 times the flux density away from the piece. The magnetic permeability of the material. अच्छा, हमारे पास ये बताया गया है कि एक पीस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जिसको कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। द फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड इट is 4 times the flux density away from the piece, the magnetic permeability. तो बेसिकली फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड, फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, है ना। फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट यस सर। है ना, इसको बोलिए। तो Yes, sir. बेसिकली परमिएबिलिटी क्या है, वैक्यूम में कितना मैग्नेटिक फील्ड है और एक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इसका रेशियो है। तो आपको ये क्लियरली बोल रहा है कि हाँ, 4 sir. टाइम्स है, ये रेशियो 4 टाइम्स है, तो कहानी खत्म हो गया ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोलने Okay, की sir. कोशिश कर रहा हूँ। फ्लक्स डेंसिटी कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बोल रहा है कि बाहर में वैक्यूम में मैग्नेटिक 4 गुना कम है, अंदर में 4 गुना ज्यादा है। तो नॉर्मल सा बात है, आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है वो 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. सर वो बहुत बढ़िया। 21 वाला का एक बार बता देंगे? अरे मेरे भाई, आपको टॉर्क दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब टॉर्क होता है, एम दिया है, बी निकल जाएगा, हाँ है ना, पहले बताइए। बी निकल जाएगा, जी सर। कुछ तो बी निकल जी जाएगा सर। और आपको बी एच दिया हो, बी निकल जाएगा, आपको बी एच दिया है, बी और बी एच के बीच का और एंगल ऑफ डिप का जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन से हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है? नहीं, जी सर। कॉस डेल्टा का रिलेशन होता है। नेक्स्ट, 10 centimeter long bar magnet of magnetic moment that much is placed in the magnetic meridian with its south pole pointing vertical south. The neutral point is obtained at a distance 15 centimeter from the center of the magnet. Calculate the horizontal component of earth magnetic field. ठीक है, तो उसमें आपको करना पड़ेगा। 10 centimeter long magnetic magnet of magnetic meridian with its south pole pointing toward geographical south. तो न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये हो गया कि हमारा जो, चले पहले तो ये देख लीजिए, ये हमारा मैग्नेट हो गया, साउथ पोल इज पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल साउथ। मैग्नेटिक मोमेंट भी हमें दिया ही हुआ है, फाइन। The neutral point is obtained 15 centimeter from the center of the magnet. Center of the magnet से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो फिर अभी यहाँ पे आपको देखना, देखिए ये जो मैग्नेट है इसको हम डाइपोल मोमेंट की ट्रीट नहीं कर सकते सबसे पहला बात, क्योंकि आपका 10 सेंटीमीटर मैग्नेट का लेंथ है और 15 सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस है, तो कंपैरेटिवली ये बहुत तो नहीं कहा जाएगा, है ना। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ?
भाई लोग थोड़ा सा सवाल लो, Yes, हाँ sir. सर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल M 1.34 दिया हुआ है, और लेंथ जो है मैग्नेट का D वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो स्मॉल m पता चल जाएगा कैपिटल M by D से, है ना? इज दैट फाइन? तो अभी देखिए, ये जो हमारा साउथ पोल है दैट इज -m, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा B साउथ, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है KQ/R², यानी कि μ0/4 Q के जगह M बाई, ये 15 हो गया, ये 5 हो जाएगा, 10 है तो ये 5 हो जाएगा, करेक्ट ना? तो ये डिस्टेंस को x कह देते हैं, ये 5 है, ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट x, राइट ना? ये 5 है, ये 15 है, तो हम लोग x कैलकुलेट कर सकते हैं, सर करेक्ट? वो है 10 ना? तो वो 5 कैसे हुआ? अरे मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ओ हाँ। बोला मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप लगाओ, जो भी पॉइंट देना है वो पॉइंट है, ठीक है? तो m/x², फिलहाल मैं इसको सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ x², और नॉर्थ पोल की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर हो जाएगा। इज दैट फाइन? ठीक है, चलिए बी नॉर्थ, वैल्यू तो वही सेम ही रहेगा। अच्छा, दोनों का जो x कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, y कंपोनेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, करेक्ट है? हाँ जी, ये ऐसे ऐड हो जाएगा। इज दैट फाइन? यस सर। थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएगा, और यही वैल्यू जो होगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, बट अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स नॉर्थ बनेगा और इसका टुवर्ड्स साउथ बन रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है वही अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes. चलिए, मतलब से खत्म हो दोनों गया क्या को काम? ऐड ऑन करना पड़ेगा? ऐड मतलब वेक्टोरियली दे, ऐसे मत कर देना, दोनों का एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? इसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों का वाई कंपोनेंट ऐड करना है, ठीक है? इस एंगल को अगर थीटा ठीक है। कहिएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा निकालना पड़ेगा आपको। नहीं, वो आर्थ वाले को हम ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें नेट से? किसको 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 किसको? वो वाई में जो भी नेट हमको मिल रहा है उसमें से आर्थ हाँ, वाले वो को तो ऐड हमको। होगा ना, वो तो ऐड हो जाएगा ना, ये दोनों का ऐड हो जाएगा ना, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। Okay, a short bar magnet is placed in the magnetic meridian of the Earth with the north pole pointing north. Neutral points are found at a distance of 30 centimeter of the magnet on the east-west line drawn through the middle point of the magnet. The magnetic moment of the magnet in ampere meter square is close to. Again, same question, guys. Same question, right ना? यहाँ पे पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में आपको बी एच पूछा था, इस बार आपको बी एच दिया हुआ एम पूछा है, समझ रहे हैं ना? हाँ जी, क्या बोलते हैं? और ये वाला क्वेश्चन रिलेटिवली आसान भी है, ये वाला क्वेश्चन आपका रिलेटिवली आसान भी है, क्योंकि इस नॉट में तो इसमें आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की वजह से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की जरूरत नहीं है। A short bar magnet is placed in the magnetic meridian of the earth with north pole pointing north. जैसे इसमें था साउथ पोल पॉइंटिंग साउथ, इसमें बोल रहा है नॉर्थ पोल पॉइंटिंग नॉर्थ, एक ही बात हो गया। न्यूट्रल पॉइंट्स आर फाउंड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मैग्नेट ऑन द ईस्ट वेस्ट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिडल पॉइंट ऑफ द मैग्नेट। सेम ईस्ट वेस्ट लाइन यही वाला लाइन होता है, ये जो लाइन है, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये ईस्ट वेस्ट लाइन होगा ना, तो 30 सेंटीमीटर पर पाया जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, समझ रहे हैं मेरी बात को? आया ना? Yes. The same question. Coming to the next one. Two tangent galvanometer are AB coils of radius 8 centimeter, 16 centimeter respectively, and resistance 8 ohm each. They are connected in parallel with the cell of EMF 4 volt and negligible internal resistance. The deflection produced in the tangent galvanometer A and B are 30 degree, 60 degree. A has two turns, B must have. अगर tangent galvanometer का concept सबको पता है, टेंजेंट लॉ पे काम करता है, हाँ या ना? भाई लोग कुछ बोलेंगे? यस सर।
अच्छा, तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का रूल क्या है, कैसे काम करता है? हमारे पास जो है, सो बी विल बी इक्वल टू बी एच tan थीटा एंड सर्कुलर कॉइल की वजह से म्यू नॉट एन आई बाई टू आर, तो म्यू नॉट एन आई बाई आर रेडियस, डी एच सबके लिए सेम ही रहेगा tan थीटा। अगर आप यहाँ से चाहें तो tan थीटा का या आई के लिए एक्सप्रेशन जिसके लिए चाहें, तो हमें तो tan थीटा चाहिए। सो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू आर बी एच। इज दैट ओके? हाँ जी, सही है, समझ में आया क्या? यस सर। Yes. तो हमारे पास क्या क्या, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, रेडियाई आर का रेशियो हमें दिया हुआ है, रेस्पेक्टिवली 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेम है। उसके बाद दे हैव कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सेल, दोनों को पैरेलल ऑफ 4 वोल्ट, तो करंट का देख लीजिएगा हिसाब किताब क्या होने वाला है। negligible deflections produced in the galvanometer is 30 degree 60 degree respectively। तो पहले तो आई का रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस 8 ओम दोनों का है, तो करंट दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों पैरेलल में है, करेक्ट ना? पैरेलल में 4 वोल्ट के साथ दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, लेट अस से पहले इसको थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। मेरा कहना यह है कि दोनों में करंट सेम होगा, डू यू एग्री? मेरा कहना यह है कि I1 विल इक्वल टू I2। पहले इतना तक में अग्री करते हैं, है ना? इससे अग्री करते हैं, हाँ सर। बोलिए। यस सर। ओके, ये आर रेडियस वाला है, रेजिस्टेंस वाला नहीं है, तो म्यू नॉट सेम ही होगा, आर बी एच सेम ही होगा। तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 म्यू नॉट सेम है, n1 आई तो सेम ही है, बाई r1 बाई n2 बाई r2, कैन यू से सो? bs तो सेम ही होगा। हाँ सर। जी, बस खत्म कर दीजिए। tan थीटा 1 के जगह डाल दीजिएगा 30 डिग्री 60 डिग्री, n1 के जगह 2 टर्न्स, n2 निकालना है, r1 के जगह 8 सेंटीमीटर, r2 की जगह 16 सेंटीमीटर, काम खत्म है। क्लियर? यस सर। थैंक यू फॉर द क्लास, ऑल ओवर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Yes, sir.